ہمارے سپاہ سالار نے جنرل ناصر منیر نے جس بہادری اور دلیری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے ہیں، بھارت کو وہ منہ توڑ جواب دیا گیا ہے جو وہ تا قیامت یاد رکھے گا کہ اس نے کس دشمن کو اور کس قوم کو للکارا تھا۔ افواج پاکستان نے دشمن کو شکست فاش سے دوچار کیا، قوم نے بھی متحد ہو کر دشمن سے جنگ لڑی اور کامیابی حاصل کی۔ بھارت یاد رکھے گا کہ اس نے کس قوم کو للکارا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ریلیز سے خطاب، کہا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی قیادت میں ملکی دفاع یقینی بنایا گیا۔ افواج پاکستان نے دلیری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی دشمن کو ناکامی سے دوچار کیا۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کئی گنا زیادہ آبادی میں، طاقت میں، جہازوں میں، ٹینکوں میں ہے، ہم یہ فتح حاصل نہ کر سکتے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر پاکستان کو، محمد شہباز شریف صاحب کو، جنہوں نے دنیا کے ہر ملک کو اصلیت بتائی۔ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دنیا کے ہر ملک سے بات کرنے پہ فتح دے دی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم نے عالمی سطح پر بھارت کا چہرہ بھی نقاب کیا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی مذمت کی، بھارت نے پہلگام کا الزام پاکستان پر ہی لگا دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا تقریب سے خطاب، کہا پاک افواج جیسی صلاحیت کسی ملک کے پاس نہیں۔ سے دیں گے۔ حملہ کیا اس نے رات کی تاریکی میں، جو پیچھے کوئی 80 جہاز تھے، 80 جہاز، جو آگے جہاز اس کے آگے، باقی وہ پیچھے لے گیا۔ تو ہم نے اس وقت بھی زوردار اس کے منہ پہ تماچا مارا تھا۔ اس کے ڈرون آئے، 80 ڈرون بھی اس کے گرائے۔ اب اس نے رات کو ادھر 2:30 بجے نور خان ایئرپورٹ پہ حملہ کیا، تو پھر اس کے بعد پاک فوج نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اب ہم اس کو بتاتے ہیں۔ افواج پاکستان نے بھارت کو مؤثر جواب دیا ہے۔ وفاقی وزیر اعلیٰ مبشر اقبال نے کہا کہ پوری قوم سیسہ پلائی دیوار کی طرح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاک فضائیہ حملوں کے بعد فرانسیسی طیاروں کی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، مودی ایک بیتی ہوئی داستان بن گیا۔ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے بہادری کی نئی تاریخ رقم کر دی، چین نے بھی دوستی کا حق خوب نبھایا۔ استحکام پاکستان پارٹی کا معرکہ حق میں تاریخی فتح پر کنونشن منعقد کرنے کا فیصلہ۔ آئی پی پی ورکرز کنونشن کو پاک بھارت معرکہ حق سے منسوخ کیا گیا۔ 23 مئی کو ہونے والے کنونشن میں صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان خطاب کریں گے۔ کرتارپور اقدام تنوع اور رواداری کی روشن مثال ہے، سکھ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے۔ سکھوں کو کرتارپور جانے سے روکنا مودی اور بی جے پی کے فاسسٹ فرقہ وارانہ ایجنڈے اور مذہبی رواداری کی کمی کو بھی نقاب کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر بیان، کہا مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترکیے کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافت و روابط پر تبادلہ خیال کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ بھارتی جارحیت پر ترکیے کی سفارتی اخلاقی حمایت پر شکر گزار ہیں، پاکستانی قوم ترکیے کی حالیہ غیر مشروط حمایت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا اجلاس سے صدارت کریں گے۔ ارکان اسمبلی توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گے۔ پنجاب 5 پیش کردہ تحریک التوا کا زیر بحث آئیں گی۔ ارکان اسمبلی اہم نوعیت کے معاملات بھی ایوان میں اٹھائیں گے۔
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक से उलमा की मुलाकात। उलमा ने फ़िरक़ा वाराना कशीदगी और मुनाफरत ख़त्म करने के लिए तरावीज़ पेश की। वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क फ़िरक़ा वारियत, जत्थेबाजी और शरपसंदी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अल्लामा हश्शाम इलाही ज़हीर बोले कि शरपसंदों के साथ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के अयादत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मेहरबान कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आने को तैयार। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। लाहौर समेत मुल्क भर से कारकुन एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन की नज़र हो गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का कहना है कि 8 माह कबल अली अमीन गंडापुर ने सोलर पैनल मंसूबे का ऐलान किया। मंसूबे के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर्स जारी कर दिए गए। मंसूबे में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए की कमीशन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मंसूबा बनता ही नहीं है। DG खान में पार्क के नाम पर करोड़ों का घपला। साबिक वज़ीर आला के आबाई इलाके में पार्क की तामीर में बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। ठेकेदार को 12.5% कमीशन के बजाय 20% अदा किए गए। बदउनवानी के इंकशाफ होने के बावजूद भी PTI हुकूमत ने मुजरिम अफसरान को बचाया। N120 में नए तरक्याती मनसूबे के आगाज़ पर तकरीब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत पर की शिरकत। जलो मोड़ से लेकर कादियाज़म इंटरचेंज और लखुडेश महमूद बूटी तक सीवरेज वाटर सप्लाई के मंसूबों पर काम जारी है। सुहेल शौकत बट का कहना है कि पाक फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इन्होंने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह एक एक मुसलमान की फतह है। हमें सजदा सजूद होना चाहिए अल्लाह की बारगाह में, जो अल्लाह ताला ने इंडिया के ऊपर फतह दी, ऐसे मकार दुश्मन के ऊपर जिसने रात के अंधेरों में हमारे सिविलियंस के, हमारे बच्चों बच्चियों के ऊपर। सूबाई वज़ीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन के हल्के में खुली कचहरी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के उमाइदीन से मुलाकात की और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग की। बिलाल यासीन ने कहा कि बिजली, पानी और सीवरेज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो काविशें हैं पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के हवाले से, जिसमें हमारे जो तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आज से 2-2.5 साल पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे है। पिछले 1.5-2 सालों के अंदर जिस तरह दिन रात मेहनत करने की वजह से वज़ीर आज़म साहब की लीडरशिप में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से जिस तरह मईशत को बेहतर किया गया। मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर IT शुदा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि आइंदा चंद साल में पाकिस्तान में $70 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के है। पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमायां कमी आएगी। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। नए बजट के हुजम, बिजली के बिलों पर डेट सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफा और 3 साल से ज़ायद पुरानी इस्तेमालशुदा कारों की दरामद पर पाबंदियाँ उठाना शामिल। गुज़श्ता 2 हफ्तों में पाक भारत तनाव में नुमायां इजाफे पर मार्केट का रद्द-ए-अमल मामूली रहा। IMF तखमीना 252 अरब रुपये या 12% ज़्यादा है। पाकिस्तान का तजारती खसारा तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। 10 माह में खसारा $21 अरब से तजावुज़ कर गया। दरामदात में $3 अरब से ज़ायद इजाफा हुआ। बरामदात में वाज़ेह कमी। पेट्रोलियम, कपास और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत मुख्तलिफ अशिया खसारे का सबब बनी। अप्रैल में भी बरामदात में कमी। मईशत के लिए खतरे की घंटी बज गई।
10 माह में पाकिस्तान की बराह रास्त गैर मुल्की सरमाया कारी में कमी आई। ज़राए के मुताबिक 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाया कारी में 3% कमी आई। जुलाई से अप्रैल तक सरमाया कारी में 10 माह में 5 करोड़ 20 लाख डॉलर की कमी आई। शहर में खुद साख्ता महंगाई इंतज़ामिया के काबू में न आई। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। अदरक 550, लहसुन 350 और मटर 190 रुपये किलो में दस्तियाब। अनार 650, सेब 370 और पपीता 270 रुपये किलो में फरोख्त। सेहतमंद खुराक अब होगी आम, फूड अथॉरिटी का यह है नेक काम। फूड सेफ्टी टीमों की इकबाल टाउन, गुलबर्ग, ठोकर और जौहर टाउन के 41 मारूफ फूड पॉइंट्स की सरप्राइज चेकिंग। नाकिस इंतजामात पर एक बंद 17 को 3,65,000 रुपये जुर्माने आए। शहर में गर्मी ने लाहौरियों को झुलसा कर रख दिया। लाहौर का पारा 43 डिग्री को छू गया। शहरी गर्मी से निढाल, चरिंदों परिंद का भी बुरा हाल। महकमे मौसमियात की आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। हीट वेव से बचने के लिए डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ गया। यूसी 237 में मसाइल की भरमार। ग्रीन टाउन में आवाम मुश्किलात से दो चार। सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सफाई के नाकिस इंतजामात। इलाके का पार्क भी वीरान हो गया। शहरियों का कहना है कि कई बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनने वाला नहीं। के मुकीम लोगों ने डिमांड की थी कि जिस तरह अतात आड़ साहब ने कहा था कि मैं यूसुफ 237 से कोई उम्मीद नहीं कि मैं यहाँ से जीतूँगा, और इन्होंने यहाँ से लीड की थी। उन्होंने वादा किया था कि हम इस जगह को एक साफ़ सुथरा करके बच्चों के खेलने की जगह बना देंगे, लेकिन कोई वादा अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। हमें उम्मीद है उनसे कि शायद कुछ हो जाए। इलेक्शन से पहले ना वो अतात आड़ साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि हम ग्राउंड की हालात बदलेंगे, लेकिन जब से इलेक्शन हुए और वो जीते हैं यहाँ से इस हल्के से, उसके बाद दोबारा नज़र नहीं आया इस तरह से। मतलब कि बाकी की जगहों पे काम हो रहा है, रोड बन रहे हैं, बाकी साफ़ सुथरा पंजाब इस तरह मरियम नवाज़ ने कैंपेन चलाई हुई है, लेकिन ये है कि इस ग्राउंड पे कोई मतलब कि वो नहीं नज़र आ रहा कि जिससे हमने उनसे उम्मीद की थी उसको भी पूरा नहीं उतरा। तजावुज़ का हुआ है मुकम्मल अजाला। लाहौर फिर से हुआ रोशन उजाला। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुस्तकिल और आर्जी तजावुज़ात समेत 5000 गैर कानूनी ढांचे मसमार कर दिए। 11 मुकदमात दर्ज, 43 ट्रक सामान जब्त कर लिया।